मार्केट में भी लोग बोलते हैं कि एआई आ जाएगा तो जॉब खा जाएगा। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को क्या पैकेज यहाँ पे आप लोग दिलाने के लिए काम कर रहे हो? बच्चे कई बार बोलते हैं कि पेड इंटर्नशिप वगैरह जो होती है वो कब से मिलता है? फर्स्ट ईयर से ही मिलती है। अच्छा, पेड इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से फर्स्ट ईयर से भी मिलती है। तो एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को क्या पैकेज यहाँ पे आप लोग दिलाने के लिए काम कर रहे हो? यहाँ पे यूनिवर्सल एआई को ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे? Mandatory requirement is 12th. Thank you Fazle for inviting me, for giving all the details about BTech in AI ML program at Universal AI University. I'm very sure कि like everybody wants to know like what is the curriculum, what programs we are floating under bachelors in technology. ये सब AI प्रोग्राम है, इसका मतलब क्या होता है, how it is different from other engineering colleges. Right. ये सब बहुत ही अच्छा विषय है चर्चा करने के लिए. So हम लोग first let us start with the thing that why it is mandatory nowadays. Why AI is mandatory? Because everybody knows that it is not just a buzzword. पूरी दुनिया में एक ऐसे बोलते कि AI की एक लहर आई हुई है. It's not new. Automation, artificial intelligence, everything actually it was supposed to be in our curriculum, in our day-to-day life we are using all these things. But now we are making students AI ready. Okay. So what does that mean? AI ready मतलब क्या? So like if you see our website, in engineering we have two programs like BTech in AI and ML and BTech in data science. Okay. Now like everybody says like data is new oil. So whatever we are doing that is with data. So I always tell all my students like people usually parents also ask us कि like AI हमारे बच्चों के job ले लेगा क्या? Will AI replace the skills? Will AI replace human being? So let us start with a note, very positive note that AI is not going to replace us. Okay. Definitely not. जब भी computers आए थे तभी भी सबको लग रहा था कि like अभी सबको replace हो जाएगा. But nobody can replace human intelligence. Okay. तो क्या replace हो सकता है? If AI is not going to replace us, the person who knows AI will replace us. Okay. Definitely. Okay. I think you are in agreement, right? Right. कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कोई कर और लेगा. कर लेगा. So it's like that. So to come up with this, so how our engineering program is different from others. So first of all, we have an industry partner called as LTI Mindtree. Okay. You all know that like how these companies they get involved in academia. It's a excellent process where academia industry tight connect is there. Okay. So वो लोग हमको देते हैं कि industry को क्या चाहिए. अच्छा. So based on that the curriculums are always designed. Okay. We review our curriculum every 6 months. We change accordingly. अच्छा. So this is about the curriculum. So if you talk about curriculum, it is completely industry relevant. What we require today, that is more important. Okay. अगर मैं आपको वही घिसा पिटा 6-7 साल का curriculum दे दूंगी, तो it is outdated. When my child will stand in the market, it has got no value. So basically, solve this issue or to bridge the gap between academia and industry, we always need industry partners. Okay. So we have that. This is the first biggest thing I can tell you that how we are different from others. Okay. तो मैम अभी तो AI का लोग जानते हैं, अभी लोग यूज़ भी कर रहे हैं डेली लाइफ में चैट जीपीटी एंड डिफरेंट AI टूल्स, राइट? बट जब यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी बना था है ना, आई थिंक 3 साल पहले, राइट? एम आई राइट? यस. तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों को AI के बारे में आइडिया नहीं था. आई थिंक कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी. तो बेसिकली इसके पीछे क्या विजन है, क्या मिशन था? करेक्ट. सो आप अगर देखोगे यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी के अंडर देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स वी आर फ्लोटिंग. MBA है, BBA है, साइकोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, साउंड इंजीनियरिंग है, मेनी प्रोग्राम्स आर देयर. तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी? बिकॉज आवर करिकुलम इज नॉट जस्ट इंटीग्रेटेड विथ AI. लाइक आप बाकी देखोगे तो यूनिवर्सिटी किसी ना किसी चीज में AI करिकुलम में ला ही रहा है बिकॉज दैट इज नीड ऑफ एन आवर. बट हमारा ऐसा नहीं है. हमारा करियर एंटायर इज बिल्ट ऑन AI. अच्छा. सो इट्स नॉट ओनली इंटीग्रेशन 10%, 20%. इट्स नॉट लाइक दैट. इट कंप्लीटली बिल्ट ऑन AI. सो इसका मैं बहुत सहज एग्जांपल आपको देती हूँ. लाइक अगर हमारे इधर बच्चा अंडर ग्रेड पोस्ट ग्रेड में एडमिशन ले लेता है तो फर्स्ट टर्म एनी स्टूडेंट विल बी AI प्रोफिशिएंट. बिकॉज
हमारे जो बच्चे हैं वो सीखेंगे, what they will see, like the curriculum, if we start only first semester also, if we compare our student when they will get admission, we call it as FAF 5. अच्छा, And we call it as Super 6 for PGs. अच्छा. So what is this FAF 5? So basically when students enrolls on our campus, they will not take the typical subjects, traditional subjects नहीं लेंगे वो लोग. अच्छा. The first subject will be taught to them like AI tools and prompt engineering, because everybody gives prompt. हम तो phone में भी prompt देते हैं. So chat GPT and all that, this is now integral part of our life. But to get the proper output, we will train them how to give a proper prompt. So दूसरा सब्जेक्ट उनका आएगा AI ethics and governance, because it is very important to teach them ethical things about AI. Third subject will come, that is entrepreneurship. Achha. Fourth subject will, and this all using AI. It's built on AI. So we call it as FAF 5 and then Super 6. We teach every student Python. अच्छा. It may be BBA, psychology, technology, sound, MBA. Everybody will learn Python. Achha. Because that is need of an hour. मतलब AI का तड़का यहाँ पे सारे कोर्स में मिलेगा. Yes. Okay, that is very nice actually. तड़का नहीं है, ये पूरा कोर्स है. पूरे क्रेडिट कोर्स है. ऐसा नहीं है कि ये ऑप्शनल है. It is mandatory. अच्छा, mandatory. Because then हमारे बच्चे will stand out than other universities, because they are AI ready. Okay. मतलब जो आप अभी मैं पहले बताया कि पेरेंट्स आर वरीड अबाउट, लाइक बहुत सारे बच्चे भी बोलते हैं, इवन मार्केट में भी लोग बोलते हैं कि एआई आ जाएगा तो जॉब खा जाएगा, राइट है ना. बट आप अगर एआई सीख लेते हो, स्किल्स ले लेते हो, तो यही कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट भी हो जाएगा. यस, करेक्ट. सो वही है कि मैं सबको वही बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये डर निकाल देना चाहिए. एआई विल रिप्लेस द जॉब, बट कौन से जॉब्स रिप्लेस होंगे? वेरी लो स्किल जिसमें ऑटोमेशन हो सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल चीज ले लो, पहले कितनी महिलाएं घर में पापड़ वापड़ बनाती थी, अभी उसके ऑटोमेटिक मशीन आ गए. इसका मतलब ये नहीं कि उनका मशीन ऑपरेट करने वाला भी तो कोई चाहिए. करेक्ट है. सो मैम अगर कोई बच्चा बीटेक करना चाहता है, जैसे आपने बताया यहाँ पे 2 स्पेशलाइजेशन है, एक बीटेक इन एआई एमएल और एक बीटेक इन डेटा साइंस. तो क्या डेटा साइंस में भी एआई का कुछ है? Yes, it is actually, that's what I said. You pick up any curriculum, it is built with AI. अच्छा. So if it is data science also, it is all with artificial intelligence. How to write from, how to read the data, analyze data, interpret data. Based on the interpretation, we will teach them how to predict. So everything using AI. Okay. So जैसे हम लोग काउंसलिंग करते हैं तो बहुत सारे बच्चे, जैसे लास्ट ईयर हमारे कुछ स्टूडेंट यहाँ पे एनरोल्ड हुआ था, एंड उनसे मैं बात भी करता हूँ बच्चों से, तो दे आर सेइंग कि नहीं हमने एआई हमें करना था सर, तो हमने चूज़ किया एंड नाउ दे आर लाइक वेरी मच हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द कॉलेजेस. तो जो स्टूडेंट आना चाह रहा है यहाँ पे यूनिवर्सल एआई को ज्वाइन करना चाहता है, तो उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, एडमिशंस का प्रोसेस क्या है, अगर आप थोड़ा बताना चाहें तो. So because as we all are aware, we are under University Grant Commission of India. Correct. So definitely as per higher education bodies, the mandatory requirement is 12th standard for first year. ठीक है. And there are few subjects which are compulsory. We can say maths, physics, maths is of course compulsory. The second criteria for admission, that is the lateral entry, that student can take in the second year also after diploma. So these are the 2 main entries for the student to enroll in the first year and then in second year. Okay. So जैसे इंजीनियरिंग के लिए बच्चे जेई मेंस का एग्जाम देते हैं, तो क्या जेई मेंस का एग्जाम मैंडेटरी है या फिर कॉलेज का भी अपना कोई टेस्ट होता है? Yeah, so we have our own tests also because हमें ये भी देखना है कि बच्चा AI रेडी है कि नहीं. Okay. So that is also मतलब अगर वो जेई दिया भी है तब भी आप वो टेस्ट एक छोटा सा टेस्ट हम लोग ले लेते हैं, उसका जेई स्कोर भी देख लेते हैं, बट वो भी देख लेते हैं. अच्छा, तो स्कोर वगैरह बेसिस पे स्कॉलरशिप वगैरह भी यहाँ पे अपने? Yes, we have scholarships like there are various schemes. You can get in touch with our marketing team. They will guide you more on that. There is a scholarship. We have special scholarships for sports persons also, so you can contact on. So there are various sectors in the scholarships also. तो उसके लिए मैं फॉर्म का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के आप मार्केटिंग टीम से कनेक्ट कर सकते हो, सो दैट कि आपको अगर प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए, लाइक कि क्या फीस है, क्या स्कॉलरशिप है, तो वो वहाँ से जान सकते हैं बच्चा. Sure. इसके अलावा मैम जो बच्चे का रहता है कि जैसे आपने बताया कि पुराना जो ट्रेडिशनल हमारा नॉलेज है, पढ़ाने का तरीका है ना, उससे आज के टाइम में जॉब नहीं मिलता है.
राइट। तो अपने यहाँ पे यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या आप लोग कैसे बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें देते हो, या फिर कोडिंग कल्चर क्या है, अगर थोड़ा सा बता सकते हैं? करेक्ट. This is very nice question actually, because I would love to speak on this as a dean academic. So basically जब हम बोलते थे like now the era is different. So in previous era वहाँ जहाँ पे एक टीचर होता था और 60 बच्चे होते थे, अभी ऐसे हुआ है कि एक बच्चे के लिए 60 टीचर भी ऑनलाइन अवेलेबल है. सो ये पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है ना वही चेंज हो गया है अभी. तो इन दिस एरा व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट का एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लास में जो एंगेजमेंट है, तो क्लास एंगेजमेंट है बिकॉज स्टूडेंट्स हैव टू लर्न समथिंग. सी देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, बट हाउ दे विल अडॉप्ट इट, हाउ दे विल लर्न इट, हाउ दे विल डेवलप द लॉजिक, हु विल हेल्प इन देम इन डेवलपिंग द लॉजिक. तो सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं हो सकती. सो हम यहाँ पे आवर एकेडमिक मॉडल इज टोटली डिफरेंट दैन अदर्स. सो एकेडमिक मॉडल मतलब क्या है कि आप एकेडमिक की डिलीवरी कैसे करते हो. सो हमारा जो मॉडल है ना, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. सो फर्स्ट आता है क्लासरूम लर्निंग, जो हम लोग टीचर विल गो टू द क्लासरूम, दे विल गेट द कंसेप्ट, बट वो भी ट्रेडिशनल वे में नहीं होता है. उसमें भी देर आर मेनी थिंग्स बिकॉज वी हैव ट्रेन्ड आवर टीचर्स अंडर द प्रोग्राम स्मार्ट फैकल्टी फॉर स्मार्टर फ्यूचर्स. दे आर ऑल्सो नॉट ट्रेडिशनल और लाइक पीपीटी लगा दिया है चल रहा है, ऐसे नहीं है. सो देर आर सो मेनी मेथड्स वी हैव टॉट टीचर्स टू फॉर द क्लास एंगेजमेंट. सो फर्स्ट आता है दैट इज क्लासरूम लर्निंग. ओके, एवरीबडी नोज अबाउट दिस टर्म. द सेकेंड आता है दैट इज द कम्युनिटी लर्निंग. मतलब हम लोग बच्चों को एक्सपोज करते हैं वेरियस कम्युनिटीज में, एंड देन दे कैन लर्न थ्रू दैट. देन आता है इंडिविजुअल लर्निंग. ओके, सो जिसमें हम लोग स्टूडेंट को सर्टिफिकेशंस दिलाते हैं. वी हैव a very good connect with various companies where students can do the certifications and everything. But you can say the flavor and the main thing about Universal AI University is that is experiential learning. So what is this experiential learning? That is learning by doing. Like कोई भी चीज़ आपके हिसाब से आप देखोगे तो इंडिया में देखा जाए तो मिलिट्री एंड मेडिकल, ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं कि जिसमें एक्चुअल लोग फील्ड पे काम करते हैं. करेक्ट. सो नाउ यही चीज़ अगर मुझे टेक के बच्चों को देनी है तो कैसे करेंगे हम लोग. So I cannot expose them directly in the final year for the on-job training, right? So यहाँ पे जो कहीं नहीं है वो एक चीज़ है, that is from first year we offer them 3 months का internship. From first year. तो इसमें क्या होता है, लाइव प्रोजेक्ट होता है, yes, we give them live project, we put them on various things, we put them on various 6 months hackathon projects, we put them, we have lot of connect with international connects are there जिसमें हम लोग उनको डालते हैं. सो फर्स्ट ईयर से ही उनका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाता है, लाइक प्रैक्टिकल एक्सपोजर शुरू हो जाता है रादर. करेक्ट. अब मैम जैसे बच्चे का सबसे पहला सवाल ही ये होता है प्लेसमेंट, है ना. ठीक है, तो आप लोग प्लेसमेंट के लिए बच्चों को कैसे रेडी करते हो? यस, वी हैव अ वेरी नाइस आइडिया एंड इवन यूजीसी आल्सो गिव्स वेरी अ बूस्टर डोज काइंड ऑफ अ थिंग. वी कॉल दैट इज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस. सो अलोंग विद द ट्रेडिशनल थिंग देयर आर फ्यू प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हु विल, and we have dedicated training and placement officer also who will prepare them for, like suppose for example there is a job description comes as a Python developer. So जो हम क्लास में Python पढ़ा रहे हैं वो that is the basic, but उसका application कैसे होगा that is trained by this community, training and placement officers, professor of practice. So you can find, you pick up the timetable, you will find every week there are few sessions dedicated for preparing students for the interview. Through skills, through mentoring, through professor of practice sessions. So practice starting से, no starting से. It's from year 1. अच्छा. एंड बच्चों को जो इंटर्नशिप मिलती है, लाइक पेड इंटर्नशिप वगैरह, कब मिलती है? सो नॉर्मली हमारा रहता है मिड अप्रैल टू मिड जुलाई वी डेडिकेट फॉर 3 months इंटर्नशिप. सो लाइक दिस ईयर हमारा 12 अप्रैल से जुलाई तक 3 महीने का इंटर्नशिप है. कौन सी ईयर के बच्चों को? सो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. ओके. बच्चे कई बार बोलते हैं कि पेड इंटर्नशिप वगैरह जो होती है वो कब से मिलता है? फर्स्ट ईयर से ही मिलती है. अच्छा, पेड इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर से भी मिलती है. अच्छा. कोई चीजें अच्छी होती है. देखिए कि जहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बट दे से कि ये फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो हम पे नहीं करेंगे, बट स्टिल स्टूडेंट एक्सेप्ट. बट आवर थिंग इज लाइक, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं कि
बच्चों को इंडस्ट्री को एक्सपोज करना चाहिए। तो दे शुड, ये छोटे बच्चे रहते हैं तो इनको जाके काम करना चाहिए, तभी वो इंटरपर्सनल स्किल्स सीखेंगे। अगर वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो डेफिनेटली लाइक वी विल सी टू इट that they will pay the students. Okay. Because we have pan India, across pan India we have students. Okay. Otherwise फोकस करना चाहिए कि आप जितना सीख लो ताकि प्लेसमेंट तो आपको फिर मिलेगा ही। ओके, सो मैम अभी कोई बच्चा अगर प्लेसमेंट के लिए देख रहा है यूनिवर्सिटी से, आई थिंक बैच अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पास आउट नहीं हुआ है, राइट? सो एक ऑन एन एवरेज स्टूडेंट को क्या पैकेज यहाँ पे आप लोग दिलाने के लिए काम कर रहे हो? सो करंटली ये अंडर ग्रेजुएशन है। सो अगर आप देखोगे तो फॉर अंडर ग्रेड्स यूजुअली द पैकेज स्टार्ट्स फ्रॉम 6 to 8.5 lakhs, लाइक दैट वी आर लाइक टारगेटिंग दैट। बट कोई बच्चा लाइक बहुत प्रोजेक्ट किए हैं, लाइक बहुत हैकेथॉन्स विनर है, लाइक यू कैन, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट अभी हमारा एक हैकेथॉन हुआ था यहाँ पे 12 और 13 मार्च को, जो हमने सबके लिए ओपन किया था। वी गॉट ऑलमोस्ट 895 एंट्रीज, रजिस्ट्रेशंस, एंड इन दैट वी एक्चुअली हैड 8.5 lakhs प्लस का प्राइजेस दिए हैं हमने उसमें। वहाँ पे डेवनोवेट, यूनिविट, ये जो कंपनीज है उन्होंने ऑन द स्पॉट बच्चों को जॉब ऑफर दिया हुआ है, 3rd ईयर के भी, और जो विनर्स है 4th ईयर के उसमें ही। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, टेक्निकल फेस्टिवल्स है, वी सेंड स्टूडेंट्स आउटसाइड। सो अगर बच्चा कुछ आउटस्टैंडिंग है तो कंपनी अपने आप होकर आगे से चली आती है कि वी विल गिव यू द जॉब। मतलब एक बच्चा अगर ऑन एवरेज कर रहा है तो 8 साढ़े 8 लाख का ले सकता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है 6.5 लाख से लेके 8 लाख तक ले सकता है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप करते हो तो यू कैन 10-15 तक। या दैट आल्सो नाउ, अभी और 1 साल जाना है बीच में, तो और पता नहीं क्या कितना होता है क्या होता है। नहीं, सो नाइस मैम। सो अभी जब मैम आप बता रहे थे हैकेथॉन वगैरह का, तो कैंपस में लाइक कोडिंग कल्चर वगैरह ये सब कैसा है? तो कोडिंग कल्चर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों से मतलब स्टूडेंट के मन से ये फियर निकलवाना चाहती हूँ कि लाइक एवरीबडी आस्क मी, लाइक आई मीट सो मेनी पेरेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स एंड दे से कि मैम हमें कोडिंग नहीं आता है। सो इट्स लाइक यू नो, आजकल के ज़माने में कोडिंग नहीं आता है और आपको इंजीनियर बनना है, AI/ML इंजीनियर बनना है, ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं ना, ठीक है आपको नहीं आता है ना, वी आर देयर, वी विल टीच यू। यस, सो वी हैव लाइक डेडिकेटेड labs, that is so for sure. But if you see our timetable, if we are dedicating 3 hours to the theory, we are dedicating 3 hours to the labs. Achha. This is how we start coding cultures. So then छोटे छोटे programs conduct करते हैं. So we have a very beautiful thing here called as AI cell. अच्छा. So AI cell मतलब क्या ना, ये एक AI cell है, ये एक cell है जिसके अंदर सारे बच्चे छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। सो वी ओपन एंट्रीज फॉर दोज AI सेल। नाउ आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे बच्चों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स खुद ढूंढ के, हमने उनको बोला था कि लाइक आपको जो चाहिए वो प्रॉब्लम्स आप सिलेक्ट कर लो, एंड लाइक वी हैव गिवन देम इंटरनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आल्सो, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट स्टूडेंट्स ने खुद ने स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ओह नाइस, दैट इज वेरी, सो AI सेल विल गिव अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू ट्राई देयर कोडिंग स्किल्स। एज इट इज इंटरनल सेल है, it is not something like that, you know, we have to face the client, and no, it's not like that. We give them problem statement to practice their coding skills. It's very unique, I feel. Nice. तो मैम यहाँ पे एक चीज़ आप बता सकते हो कि कई बार बच्चे ना ट्रेंड देख के स्पेशलाइजेशन ले लेता है कि यार अभी AI का ज़माना चल रहा है तो AI ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप उन बच्चों को थोड़ा बता सकते हो कि किसको AI/ML लेना चाहिए, या फिर आप इसके साथ साथ ये भी बता सकते हो कि किसको AI/ML ब्रांच नहीं भी लेना चाहिए, या फिर कोई अदर स्पेशलाइजेशन ले लेना चाहिए। तो थोड़ा आप उस पर कुछ बता सको बच्चों को। हाँ, तो मेरे हिसाब से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, दीज आर हॉट केक्स करंटली। ठीक है, अगले 10-12 साल तक तो मतलब ये तो होने ही वाला है, बिकॉज जितना हम ही लोग हैं जो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, एवरी मोमेंट वी आर क्रिएटिंग ट्रिलियंस ऑफ डेटा। तो who will take care of this data? Who will take out predictions from this data? तो definitely AI/ML data science के ऐसे interesting qualifications है, so everybody should go for it. I will not say कि आप नहीं जाओ, आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं। I will say that just ये है कि ऐसा है कि ये पानी में कूदो आप तैरना सीख जाओगे अगर कोडिंग नहीं आ रहा है। हम है वो सिखाने के लिए। बट अगर किसी को नहीं लेना है, ये भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज, तो मैं बोलूँगी कि जिसको पेशेंस नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल
people say that ma'am can I use automatic coding? अरे भाई ऑटोमेटिक कोडिंग में तुम्हें 2 दिन 3 दिन हेल्प कर सकता है, बट उसके बाद यू हैव टू पीपल कंपनीज आउटसाइड विल नॉट पे यू व्हाट इज एग्जिस्टिंग, करेक्ट, कंपनीज विल पे यू व्हाट यू कम अप विद. सो आई थिंक जिसको इनोवेटिव माइंड है, जिसको क्रिएटिव माइंड है, जिसको प्यार है, लाइक आई वॉन्ट टू रीड द डेटा, उसने डेफिनेटली AI लेना चाहिए. दिस जनरेशन इज सो स्मार्ट ना, वी डोंट हैव टू टेल देम कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है. दे आर वेरी स्मार्ट, दे नो. बट आई थिंक ऐसा किसी को मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि ये मत ले लो. अच्छा, ओके. मैं अभी बच्चे से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि यहाँ पे जो थोड़ा सा आप लोगों का करिकुलम है ना, दैट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इंस्पायर्ड है. हाँ. राइट, कि अदर कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें वो लोग, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हैं अदर कंट्रीज़ के मुकाबले, है ना, वो लोग थोड़ा सा आगे हैं. राइट, तो बच्चे बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो आप लोग इंस्पायर्ड है तो वो चीज़ें को कर रहे हैं. आई थिंक आपके यहाँ के जो VC हैं, आई थिंक इंडिया के पहले ऐसे VC हैं जो फ्रॉम बाहर से आए हैं. तो मतलब इस सब चीज़ों के पीछे में क्या मोटिव रहता है आप लोग का? सो देखो, लाइक वेरी वेरी सिंपल थिंग, यू ऑल्सो नो दैट वी आर कनेक्टेड वाया 1 क्लिक. नाउ इंडिया में बैठ के भी बच्चा अभी बता सकता है न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है. सो जैसे like these people they come to know about education also. So rather than using the term international standards, I will use the term global standards. So we are trying to match our standard with the global standard. Okay. Because you also know that kahin na kahin there are a lot of reason, I don't want to go into that, but there are a lot of reason ki like we should adopt good practices. So it's not like that we want to be like America or we want to be like Australia. We want to adopt good practices from the globe. Okay. And that is why the standard is little global. Okay. So क्या कुछ ऐसा बच्चों को आप लोग कुछ ग्लोबली भी एक्सपोजर दे रहे हो कैंपस में? Yes, we have foreign collaboration programs. अभी हमारे बीटेक के 7 बच्चे साउथ कोरिया गए हैं. अच्छा, for the internship? Yeah, for 1 term they will do it there. So they will get exposure there, they will make friends, they will do networking, because it is very important nowadays. So we have many foreign collaboration programs. Rather, we have our office of internationalization. Achha. So there people can just go and get all the ideas, like with how many universities we are connected, how many students are already going. So it is like okay. आई होप आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो गए होंगे. मैम ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत ही आसान शब्दों में बताया है. थैंक यू सो मच मैम. एंड स्टिल लाइक कि आपकी कोई क्वेरीज रहती है, इफ़ यू वांटेड टू कनेक्ट विद मैम, कि कोई पर्सनली 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहता है, लाइक अगर आप पेरेंट्स हो और आप यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, मैम इज़ डीन है यहाँ की, तो आप चाहते हो कनेक्ट होना, तो मैं ट्राई करूँगा मैम का टाइम लेकर के कि आपको कनेक्ट कराऊँ. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you so much. Any reason, any queries, I'm just a call away. Thank you so much. थैंक यू. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.